یہ کہانی ایک ایسے غیر معمولی شخص کی ہے جو اپنی زندگی میں شہرت اور دولت کی بلندیوں کو اتنے قریب سے چھو چکا تھا کہ عام انسان اس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کی زندگی مثال بن سکتی تھی، لیکن مثال بنی تھوڑی سی الٹ۔ اس کا نام عزت اور وقار کے ساتھ لیا جاتا، لیکن قسمت کے ایک موڑ پر شاید یہ اپنے ہی فیصلوں کی بھول بھلائیوں میں اس قدر گہرائیوں میں دھکیل دیا جاتا ہے یا گہرائیوں میں گر جاتا ہے جہاں سے واپسی ناممکن نظر آ رہی تھی۔ یہ کہانی ہے انسانی خواہشات، غلطیوں اور ان کے نتائج کی، ایک ایسی داستان جو آپ کو زندگی کے گہرے اسباق سکھاتی ہے۔ تو آئیں اس غیر معمولی اور سبق آموز کہانی کا پردہ چاک کرتے ہیں، جہاں عروج، زوال، اس سب مختلف راز لیے ہوئے ہیں۔ اس شخص کا نام RD ہے، جس کی زندگی میں کامیابی اور چمک دمک ایک ساتھ چلتی تھیں۔ اس کی زندگی میں ہر قدم پر حیرت کا ایک نیا دروازہ کھلتا ہے۔ وہ ایک ایسا نام تھا جو کاروں کی دنیا میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا، اور اپنے غیر معمولی کاروباری انداز سے اس نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ اس کو غیر ملکی کاروں کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ یہی جنون اسے ان گاڑیوں کی دنیا میں ایک منفرد مقام دلاتا ہے، اور وہ ایک غیر ملکی کاروں کی ڈیلرشپ میں پارٹنر بن جاتا ہے، جہاں وہ ہر روز ایک نئی کامیابی کی کہانی تخلیق کرتا ہے۔ یہ ڈیلرشپ نہ صرف اسے امیر افراد کے لیے ایک امپورٹنٹ شخصیت بنا دیتی ہے، بلکہ وہ ان کی خواہشات کو پورا کرنے والی ایک ایسی پرسنالٹی ہے جن کو وہ اپنی گاڑیوں کے بارے میں بتائیں گے، اور اگلے ہی لمحے ان کے لیے ہر چیز ریڈی ہوگی۔ RD ایک ایسے شخص کے طور پر جانا جاتا ہے جو سپاٹ لائٹ میں رہنا پسند کرتا ہے، اور وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اس کی ہر حرکت دنیا کے سامنے ہو۔ وہ اکثر انسٹاگرام پر اپنی قیمتی اور نایاب کاروں کی تصویریں شیئر کرتا ہے۔ اس کے انسٹاگرام پوسٹ میں ایک الگ کشش ہوتی ہے، اور وہ دنیا کو اٹریکٹ کرتی ہے، جیسے وہ دنیا کو یہ بتا رہا ہو کہ دیکھو یہ سب ممکن ہے۔ ایک دن اس نے اپنی انسٹاگرام پر ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں وہ نایاب 6 پہیوں والی مرسڈیز بینز دکھا رہا تھا۔ وہ ویڈیو ایسی تھی کہ کسی کی بھی نظریں اسے ہٹنا مشکل تھا، اور پھر جیسے ہی اس نے ویڈیو پوسٹ کی تو اچانک اسے ایک مشہور ریپر نے دیکھا جس نے RD کو DM کیا۔ ریپر کا پیغام سادہ لیکن پرجوش تھا۔ وہ RD سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ بینز گاڑی آپ نے فروخت کے لیے پوسٹ کی ہے؟ RD جواب دیتا ہے کہ جی ہاں۔ ریپر فوری طور پہ جواب دیتا ہے کہ وہ اس گاڑی کو خریدنے کا خواہش مند ہے، اور RD کے دوبارے نیارے وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے کہتا ہے کہ اوکے چلو ڈیل کرتے ہیں۔ گفت و شنید کے بعد دونوں ہی ڈیل ڈن کر لیتے ہیں۔ RD نے نہ صرف ایک نایاب کار بیچی، بلکہ اس لمحے اس کی زندگی کا جو رخ تھا وہ بھی بدل گیا۔ وہ اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اس بات کا جائزہ لے رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ ایک پوسٹ نے اس کی اتنی بڑی ڈیل کروا دی تو ایک غیر معمولی خیال اس کے ذہن میں آتا ہے کہ کیوں نہ وہ مستقبل میں بھی اس طریقہ کار کو آزمائے اور اپنے کاروبار کو وسعت دے۔ یہ ایک لمحہ تھا جو نہ صرف RD کی زندگی میں انقلاب لایا، بلکہ اس کے کاروباری سفر کو بھی ایک نئے موڑ پر لے آیا۔ انسٹاگرام جو کبھی صرف اس کے لیے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم تھا، اب RD کے لیے ایک طاقتور کاروباری ہتھیار بن چکا تھا۔ لوگ اس کے انسٹاگرام پیج پر جاتے اور پرکشش گاڑیاں دیکھتے، ایسی گاڑیاں جو لوگوں کو اپنے خوابوں کی تکمیل لگتی تھیں، اور RD انہیں حقیقت میں بدل رہا تھا۔ گاہک اسے ایک پیغام بھیجتے، اپنی پسند کی گاڑی کے بارے میں بات کرتے، اور RD ان کے ساتھ ڈیل ڈن کرنے کے بعد گاڑیاں ان کے دروازے پر ڈیلیور کرواتا۔ یہ پوری کارروائی اتنی بہترین اور غیر معمولی تھی کہ لوگ اس کی خدمات کو پسند کرنے لگے، اور یہ سب صرف انسٹاگرام کے ذریعے ہی ممکن ہوا تھا۔ RD کی زندگی ایک ریس کی طرح چل رہی تھی، جہاں ہر لمحہ نئے مواقع لے کر آ رہا تھا۔ وہ 24 گھنٹے یا پورے 7 دن مصروف رہتا، ہر وقت کسی نہ کسی مشہور شخصیت کے ساتھ جڑا رہتا۔ ایک دن وہ جیمی فاکس کو ایک شاندار نئی گاڑی فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک عام سودا نہیں تھا، یہ ان دونوں کی دوستی کی شروعات تھیں۔ جلد ہی وہ دونوں ایسے دوست بن جاتے ہیں
जैसे सालों के साथ एक दूसरे के साथ ताल्लुक में हों, हर वक्त साथ घूमते, हंसते और लुत्फ़अंदोज़ होते थे। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। एक दिन आरडी को एक बड़ी पेशकश मौसूल होती है जो उसके कारोबार को एक नई बुलंदी पर ले जाती है। उसे एक प्रोड्यूसर का फ़ोन आता है जो टेलर स्विफ्ट के एक म्यूज़िक वीडियो पर काम कर रही थी। प्रोड्यूसर उसे कहती है कि हमें म्यूज़िक वीडियो के लिए एक बुगाटी कार की ज़रूरत है, क्या वो तुम्हारे पास है? आरडी के पास तो हमेशा ही कुछ ख़ास होता था। वो फ़ौरन बुगाटी फराहम करता है और जब वो गाड़ी इस वीडियो में दिखाई देती है तो उसके लिए ये एक शानदार लम्हा बन जाता है। वो बुगाटी अपनी गैर मामूली खूबसूरती के साथ साथ वीडियो में जगमगा रही थी और ये सब कुछ आरडी की महारत और मौके को पहचानने की सलाहियत का नतीजा था। वो खूब जानता था कि मौके से कैसे फ़ायदा उठाया जाए। इसके बाद आरडी का इंस्टाग्राम एक अलग दुनिया बन गया। लोग उस पर जाकर सिर्फ गाड़ियों को नहीं देखते थे, वो दुनिया की सबसे बड़ी जो मशहूर शख्सियत थीं उनको आरडी के साथ देखते। आरडी दुनिया के बड़े बड़े जो पर्सनैलिटीज़ थीं, जो लोग थे, उनके साथ डील कर रहा था। उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक उनको गाड़ियाँ फराहम कर रहा था। यानी उसका ये प्रोजेक्ट बहुत ही कामयाब चल रहा था। ये सब कुछ एक चीज़ को साबित कर रहा था कि आरडी सिर्फ एक कार डीलर नहीं था, वो मशहूर शख्सियत की दुनिया में एक नुमाया शख्सियत बन चुका था। आरडी की ये चमक दमक, ये कामयाबी और ये ज़िंदगी एक ख्वाब की तरह लगती थी। लेकिन जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था। कैसे, हम आपको बताते हैं। मशहूर लोगों के साथ दोस्तियों का फ़ायदा उठाते हुए आरडी सोचता है कि क्यों ना वो अपना एक शोरूम खोले, जिसके बाद वो बेवरली हिल्स में कारों का एक शोरूम खोल लेता है जिसका नाम वायर्स ओनली रखा जाता है। आरडी की ज़िंदगी बज़ाहिर एक शहनाई ख्वाब की तरह थी, जहां हर दिन उसे नई कामयाबियां और इज़्ज़त बख्शता था। अपनी गैर मामूली शोहरत और कारोबारी महारत की बदौलत वो सिर्फ एक कार डीलर नहीं रहा, बल्कि एक आलमी आइकन बन गया। इसकी शोहरत ने उसे इतना मोतबर बना दिया कि उसे एक रॉयल्टी शो की मौज बनने का मौका मिला, जिसका नाम था $1 मिलियन डील्स। ये शो HBO मैक्स पर नशर हुआ और ये ना सिर्फ एक आम शो था, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहां आरडी अपनी शानदार सलाहियतों का मुजाहरा कर सकता था। इस शो में आरडी का काम महज मशहूर शख्सियत को गैर मुल्की और लग्जरी कारें फ़रोख्त करना नहीं था, बल्कि ये उनके साथ साथ ताल्लुकात भी अपने मजबूत करता जा रहा था और उनके ख्वाबों को हकीकत में बदलने की एक कहानी बन रहा था। किम कार्दाशियन जैसे बड़े नामों को कारें फराहम करना उसके लिए मामूल की बात बन चुकी थी और ये शो उसकी महारत का आईनादार था। आरडी की दिलचस्पियाँ सिर्फ इस रॉयल्टी शो तक महदूद नहीं रहीं। जब वो शो की शूटिंग ना करता तब भी वो आराम नहीं करता। उसकी ज़िंदगी मुसलसल एक मुहिम की मानंद थी, जहां वो दुनिया के कोने कोने में नायाब कारें, लग्जरी कश्तियां और निजी जेट तैयारों की तलाश में मसरूफ़ रहता था। वो अपने क्लाइंट्स के लिए बेहतर से बेहतरीन चीज़ों की तलाश में लगा रहता था। उसकी शोहरत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही थी। इंस्टाग्राम पर उसके 1 मिलियन से ज़ायद फॉलोअर्स उसके हर लम्हे को देखते और सराहते थे और उसकी चमकती दमकती ज़िंदगी से मुतासिर होते थे। बज़ाहिर तो आरडी बहुत अमीर हो रहा था और वो बताता है कि हर साल उसे कारोबार से 70 से 150 मिलियन डॉलर आते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आरडी ने अपनी ज़िंदगी को एक ख्वाब के मानंद बना दिया था, एक ऐसा ख्वाब जिसे देखकर दुनिया रश करती थी। बेहतरीन कारों में घूमना, मशहूर शख्सियत के साथ वक्त गुजारना, इंस्टाग्राम पर अपनी लग्जरी ज़िंदगी की झलकियाँ शेयर करना, ये सब कुछ आरडी के लिए मामूल की बात थी। मगर सोशल मीडिया पर आरडी की ज़िंदगी जितनी खूबसूरत और बेऐब नज़र आती थी, हकीकत उसके बरअक्स थी। इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स को मुतासर करने के पीछे एक ऐसा दबाव था जिसे वो दुनिया से छुपाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। आरडी ने जिस कामयाबी की तस्वीर पेश की वो शायद इतनी हकीकी नहीं थी जितनी वो दिखाई देती थी। मुबैना तौर पर आरडी के मामलात, जो माली मामला थे, वो इतने साफ शफाफ नहीं थे जितने वो जाहिर कर रहा था। उसने कुछ कारें लीज पर हासिल करने के बाद उनको सब लीज पर दे दिया था। इनके पैसे वक्त पर मसूल नहीं हो रहे थे। इसके अलावा
कुछ मामलात में कारों की खरीदो फरोख्त के कागजात में भी बेज़ाब्तगियां सामने आ रही थीं। आरडी की ये माली मुश्किलात उसके कारोबार को अंदर ही अंदर कमज़ोर कर रही थीं और बाहर दुनिया को कुछ भी नहीं था पता। ये सब कुछ उसकी चमकती दमकती ज़िंदगी के पर्दे के पीछे हो रहा था। आरडी की ज़िंदगी में मुश्किलात ने ना सिर्फ उसे माली तौर पर बल्कि जज्बाती तौर पर भी गहरे नुकसान पहुँचाए। ये सब कुछ इस बात की याद दहानी थी कि सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली ज़िंदगी और हकीकी ज़िंदगी के दरमियान अक्सर एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है जिसको फॉलोअर्स या आम लोग नहीं देख पाते। आरडी की कहानी जो एक कामयाब कार डीलरशिप और शानदार ज़िंदगी से शुरू हुई, अब एक इंतहाई पेचीदा और तलख मोड़ की तरफ जा रही थी। आरडी ने गैर मुल्की कारों को लीज पर देने और फ़रोख्त करने में जिन तरीक़ों का इस्तेमाल किया वो मुबैना तौर पे कवानीन की खिलाफ वर्जी थे। कारें लीज पर देने के बाद क्लाइंट्स को मुनासिब इजाज़त के बगैर मुंतकिल करना और गैर कानूनी तौर पर कारों की सेल इसके ख़िलाफ़ कानूनी मसाइल पैदा करने लगी। फिर ये भी मालूम हुआ कि उसका बेवरली हिल्स में मौजूद डीलरशिप शोरूम वो भी मुबैना तौर पे बगैर लाइसेंस के काम कर रहा था। उसको कानूनी बनाने के लिए आरडी ने हुकूमत से मतलूबा इजाज़तनामा लेने की कोशिश की, मगर उसकी दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद उसने अपने इस शोरूम को बंद कर दिया और इसको बंद किए जाने की पोस्ट भी उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर दी। ये शोरूम बंद होने के बाद आरडी की माली हालत बहुत बिगड़ने लगी। उसके चेक बाउंस होने लगे और उसके क्लाइंट्स और जो बिज़नेस एसोसिएट्स से या जो कारोबारी शराकतदार थे उन्होंने उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करना शुरू कर दिए। आरडी पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी, धोखाधड़ी, चोरी और दीगर संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए। उसके ख़िलाफ़ हज़ारों से लेकर लाखों डॉलर्स के हर्जाने के दावे भी दायर किए गए। इससे पहले कि आरडी को मालूम होता कि हो क्या रहा है, उसके ख़िलाफ़ इस तरह के लातादाद केस दायर किए जा चुके थे, यानी अब वो फंसता जा रहा था। आरडी के मसाइल में मज़ीद इजाफा उस वक्त हुआ जब उसके ख़िलाफ़ एक बाउंस चेक का मामला सामने आया। ये चेक जिसकी मालियत $1,13,000 थी, लॉस वेगस के MGM ग्रैंड कैसीनो को दिया गया था। चेक बाउंस होने के बाद कैसीनो ने पुलिस को इत्तला दी, जिसके नतीजे में नेवाडा रियासत ने उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिए और आखिरकार पुलिस ने आरडी को बेवरली हिल्स में तलाश किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरडी ने कैसीनो की रकम तो वापस कर दी, लेकिन उसके बाद भी उसकी मुश्किलात में इजाफा होता रहा। कैसीनो के जो मामला थे इस चेक के, वो उसके चार्जेस उसके ख़िलाफ़ ड्रॉप कर दिए गए, लेकिन दीगर मुकदमात बदस्तूर जारी हैं। वो अभी भी इन मुकदमात का सामना कर रहा है। पेशा वाराना ज़िंदगी में मसाइल के साथ साथ आरडी की ज़ाती ज़िंदगी भी मुतासर हुई। उसकी बीवी जिसका नाम समांथा था और वो भी एक मशहूर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी, उसने आरडी से तलाक हासिल करने के लिए केस दायर कर दिया। इसके अलावा समांथा ने घरेलू बदसलूकी का एक हुक्मनामा भी हासिल किया, जिसमें दावा किया गया कि आरडी ने उस पर हमला किया और उसको स्टॉकिंग की कोशिश की। आरडी की ज़िंदगी इस वक्त कानूनी मुकदमात और ज़ाती बहरानों का शिकार है। उसके ख़िलाफ़ मुकदमात चल रहे हैं, लेकिन उनका फ़ैसला अभी होना बाकी है। ये कहानी इस बात की एक तल्ख़ याद दहानी है कि कामयाबी और शोहरत की चमक दमक के पीछे अक्सर मुश्किलात और चैलेंजेस छुपे होते हैं। आरडी की ज़िंदगी जो एक वक्त में हसरतों का ख्वाब लगती थी, अब इबरत की एक मिसाल बनी हुई है।